the honor and privilege of presenting to you Mahima Chaudhary, who is not only a screen icon, but a dedicated advocate, voice for the survivors, not only an award-winning star, but a champion of human spirit. Ladies and gentlemen, very warm welcome to Mahima Chaudhary, and I invite Tejaswini to do the honors of the formal introduction of our star guest. So I've been given the task of introducing the Mahima Chaudhary, a task quite unnecessary, I believe. She's world-renowned. She's one of the most beloved actresses of the Indian movie industry. She has given us absolutely iconic roles and performances that we remember till date. And her work actually goes beyond just the silver screen. Can we move to the slides? She also campaigns for the Trinamool Congress, and she's also a doctor. She holds a doctorate degree given to her from the ACS Media. She is a huge animal lover. She has a pet that she adores called Antonio, and she's also campaigned for PETA. So ladies and gentlemen, please can we have a round of applause for Mahima Chaudhary? And ma'am, could you please share your journey today with us? किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी मगर कब न जाने ये बरसात होगी मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा मेरी तकदीर Thank you so much, Mrs. Kumar. Thank you, Tejaswini, for that wonderful introduction. And I think let's get going. The theme is Zara Tasveer se nikal ke tu samne aa. And none other than Mahima Chaudhary could do justice to it. As I said, she is not only a screen icon, but a hero in real life. आपने एक बात उसमें बोली, लकी कैसे हो सकता है और अर्ली डिटेक्शन, जल्दी पकड़ने से क्या मैंने और आपने क्या महसूस किया और क्या मैसेज आप जितने लोग यहाँ पे हैं उनको देना चाहेंगे, and thousands of our viewers who are at the moment on various social media. Dr. Saab, thank you so much. Dr. Saab is award winning, so I am very speaking with him, but जैसा आपने सवाल किया
कि बिल्कुल कैंसर नाम सुन के तो सब घबरा जाते हैं, बट जिस चीज़ को आज आप यहाँ प्रोमिनेंस देना चाहते हैं कि जितना जल्दी आप डिटेक्ट करें उतना आपका ट्रीटमेंट छोटा होता है और ज़्यादा चांसेस ऑफ सर्वाइवल होता है। ये मुझे इतना पता नहीं था, बट जब मुझे डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यू आर वेरी लकी, इतनी जल्दी हमने पकड़ लिया, इसको ट्रीट करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो यही मैसेज शायद डॉक्टर साहब आप और मैं देना चाहते हैं आज सबको कि स्टे एट द टॉप ऑफ योर हेल्थ गेम and get your regular checkups, because it will really save you a lot of trouble if there is going to be any trouble in the future. जैसा मेरे साथ हुआ, डॉक्टर ने कहा you're lucky, हमने बहुत जल्दी पकड़ लिया. So I think that is a very, very important thing, especially in cancer. Wonderful. I think early detection means small amount of disease, less surgery, less treatment, better outcome. Yes. बहुत बढ़िया. अब देखिए जब diagnosis, you're given it's like a bolt from the blue, and suddenly your life stops. What happened? You did a mammogram, and mammography said there is something. And how the subsequent months, and I'm sure the years, it just doesn't go away. But how was it? And what brings that courage and that belief to come back to life? I think it's doctors like you who give us the confidence. जैसे आज सुबह भी जब मैंने आपसे चर्चा की, आपने कहा बहुत सारी medicines हैं कैंसर क्योर के लिए आज. There's a lot of medicines. And यही मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे कहा था. And मेरा जो diagnosis हुआ वो बहुत slowly हुआ. As in जो मैं रेगुलर चेकअप कराती थी वैसे ही रेगुलर चेकअप के लिए मैं गई, और जो सोनोग्राफी कर रही थी और मेमोग्राम का जो रिजल्ट देखा, उन्होंने कहा आई सी कैल्सिफिकेशन, तो गो एंड शो इट टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट. वी ऑल नो ऑन्कोलॉजिस्ट इज somebody who deals with cancer. So that was my first hit. I said, really? जब मैं oncologist के पास गई, they did a physical examination and they said, नहीं, I don't suspect cancer at all, but हम biopsy करेंगे. Biopsy negative आई, because मेरा जो tumor था वो बहुत छोटा था. And he said, anyway, since this is DCIS, so we will remove the pre-cancer cells. जो मेरे cells थे वो pre-cancer cells suspected थे. But जब surgery हुई उस time पे वो लोग cold biopsy भी करते हैं, उसमें उनको 1 centimeter, 1.5 centimeter का already cancer cells मेरे body में से मिले. तो उन्होंने फिर मुझे port लगा दिया. And when I came through the surgery, that's when I heard the doctor say, Mahima, don't get alarmed. हमने एक port लगाया है chemo के लिए. You're very lucky. It was a very small tumor. We found cancer cells. So it was a mixed. तो आपने डॉक्टर को ये पूछा कि बायोप्सी की क्या जरूरत है? What's the need for a biopsy? Lot of people have a myth. One of the myths in the society is you touch it, And it it grows. spreads, Yeah. it grows. So what was your reaction to a biopsy? That I should get it done. Excellent. So everybody should get it done. Yeah, so when he said do a biopsy, I was like, yeah, sure, let's rule it out. But, you know, जो आप सुनते हैं, particularly because, you know, our society is very celebrity driven. And मैंने Hollywood actress Angelina Jolie के बारे में सुना था. She had a particular BRCA cell sort of in her genetics. And क्योंकि उनकी मासी और उनकी mother had succumbed to this BRCA kind of cancer, she was very sure that once she was done with having children, she would remove her reproductive organs. And she removed both her breasts, her uterus, her ovaries. And I had that knowledge. So when the doctor said, कि आपको pre-cancer cells हैं, my immediate reaction, because of that knowledge, I said, Doctor,
I'm okay, you can remove both my breasts. He says, no, 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 it's not so drastic. But this is the kind of influence that she had on me. There was another person who influenced the way, जिस तरह से मैंने कैंसर को एक्सेप्ट किया, was संजय दत्त. सेम टाइम संजय दत्त मेरे को स्टार रह चुके हैं. वो लंग कैंसर से बैटल कर रहे थे और उनका भी ट्रीटमेंट उसी हॉस्पिटल में हो रहा था. लेकिन क्योंकि कोविड था, मैं उनको सोशल मीडिया पे देख रही थी कि वो तो फिल्म भी शूट कर रहे हैं, उनकी फिल्म भी रिलीज हुई, हिट भी हो गई और अपने काम पे ऐसे जा रहे हैं जैसे कुछ कोल्ड एंड फ्लू हुआ है. एंड आई वाज लाइक वेरी डाउन. उनको देख के मुझे लगा कि वाई मैं ऐसे ट्रीट नहीं कर रही कैंसर ट्रीटमेंट को, बिकॉज कैंसर ट्रीटमेंट इज गुड. एंड वो 4-5 दिन की दिक्कत होती है कीमो में जब आपके सेल्स बहुत डाउन हो जाते हैं. बट बिसाइड्स दैट यू कैन कंटिन्यू टू लीड as normal as you can a life. And he inspired me. So that was the time जब Mr. अनुपम खेर ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, मास्क लगा के एयरपोर्ट पे थी. अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम फिल्म करोगी, तो मैंने की. And that's how Signature, the film Signature happened. So he influenced me, Dr. Saab. So these are the voices, the people around you who have a great role to play, and who were the people in your life who had that type of an influence, and then you moved on with the diagnosis and with the treatment. तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, she was about 14, और उसने जैसे आजकल हम सब करते हैं, उसने बहुत गूगल पे रिसर्च किया. एंड शी सेज, मामा जो आपको है वो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है. एंड उसने और लोगों के ऊपर रिसर्च किया जिन्होंने सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट लिया था. सो शी रियली हेल्प्ड मी अ लॉट. एंड एज एनी मदर, बिकॉज यू आर लिविंग विथ योर डॉटर, आप थोड़ा सा एक ब्रेव फ्रंट प्रिटेंड करते हो, और प्रिटेंड करते करते वो आपकी एक एंगल बन जाता है लाइफ में उस टाइम पे. एंड मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, हालांकि हम एक ही घर में रहते हैं, बिकॉज मम्मी वाज अ पार्किंसंस पेशेंट. 2 साल पहले मैंने उनको खोया, तो उस टाइम पे वो बहुत कमज़ोर थी, और मेरे डैड भी 80. तो मैंने कहा उनकी कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए. तो घर में नर्सेस तो थी, बिकॉज मम्मी को अटेंड कर रही थी, तो आई हैड अ लॉट ऑफ हेल्प. उनको पता था, बट मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया. मैंने कहा एक बार सब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दिस इज़ ट्रीटेबल, एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए, लेट मी टेल देम कि कुछ हुआ था और अब ठीक हो गया. तो जब बात कीमो के बाद बाल झड़ने की आई, तो मैंने अपने फादर से ही मुंडन करवाया, बिकॉज आई सेड, पापा मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं. तो मेरे डैड एकदम अपने आप को क्लीन शेव रखते हैं, बिकॉज बहुत थोड़े बाल रह गए हैं, सो ही स्टेज बॉल्ड. एंड उनके पास वो बजर था. तो मैंने कहा लॉकडाउन है, कुछ काम वाम हो नहीं रहा, मैं भी सोच रही हूँ एक बार मुंडन करा लूँ. तो ही सेज, मैं करता हूँ, मेरे पास सबसे अच्छा बजर है, अभी मैंने एक नया भी मंगाया है. तो उस चक्कर में उनको कुछ डाउट नहीं हुआ, बिकॉज ही थॉट कि मैं सिर्फ बेटर ग्रोथ के लिए So family support. Family support, yes. Family is your anchor. Yeah. Now आपने गूगल की बात करी, आपकी बिटिया ने गूगल किया. बहुत खतरनाक चीज है सर. Thank you so much. बहुत खतरनाक. So thank you so much. अब इस जर्नी में अगर आगे बढ़ें, आपने बात करी डायग्नोसिस की, आपने बात करी ट्रीटमेंट प्लानिंग की या ट्रीटमेंट स्टार्ट होने का. Tell us about the emotional and the social impact, and the social, not the impact, I would call it as a social battle. How did you win the social battle and the emotional battle? Emotional was what was inside, and the social was what was around you. Yes, because वो आपको फिजिकली इतना इम्पैक्ट करता है, स्पेशली खासकर जो प्रोफेशन में हूँ उसमें सुंदर दिखना, ये सब बहुत काउंट करता है. एंड वही चीज़ इम्पैक्ट हुई.
एंड ये मेरी ज़िंदगी में सेकंड ब्लो था, बिकॉज इससे पहले 10-12 साल पहले मेरे को कार एक्सीडेंट में सिर्फ फेस पे ग्लास लगा था, एंड सो एक टाइप का एक्सपीरियंस था, एंड आई जस्ट डिडंट बिलीव आई वाज रीलिविंग दैट. तो मैं अपनी बिल्डिंग में भी किसी को पता नहीं था, तो आई गेस वैनिटी स्पेशली विद विमेन इज सच अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. तो मैं हमेशा विग पहन के, कैप पहन के, आईब्रोज नहीं थी तो आईब्रोज बना के, सनग्लासेस इवनिंग तक रखती थी बिकॉज आई लैशेस भी चले गए थे, नीचे वॉक भी वैसी लेती थी. तो येस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेयर, बट जब आप शेयर करते हो तो यू विल बी सरप्राइज्ड लोग किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं. एंड ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की जब मिस्टर अनुपम खेर ने बोला ये वीडियो मैं अपने सोशल हैंडल पे डाल रहा हूँ, एंड आई वाज लाइक नहीं 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 बिल्कुल नहीं डालना, एंड माय सिस्टर सेड नहीं नहीं डाल दो. उसके बाद जो मुझे कॉल्स आई, जो सपोर्ट मिला, जहाँ जाती हूँ जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो सपोर्ट मिलता है, तो इससे मैंने एक चीज़ सीखी है कि प्लीज़ टेक हेल्प एंड प्लीज़ शेयर. इट विल ओनली बी better for you and your journey will be so much easier. So does that ease the coping? Yes. Sharing eases the coping? Yes, it does. Excellent. Now, what about the emotional? Sir, emotional तो जाता ही नहीं है. Mhm. But what you doing, because you had an active public life, you were out in the public, you were shooting, you were doing everything to carry on with the day-to-day activities and to carry this burden of the disease in the background and the side effects of the chemotherapy. How were you coping up with the side effects of the chemotherapy while you were working as well? Like you can see कि it is something that stays with you emotionally, but every day is not so bad. It's high and low. किसी दिन आपको लगता है it's okay अगर I get something like this again. I have doctors like this. And we have the best doctors in the world. Our Indian doctors are fabulous. They give you so much of emotional support, which I'm not sure you get so much outside, and they're wonderful. But डॉक्टर साहब, आई गॉट लकी. मुझे जो रोल्स मिले ना उसमें यू एज अ बिट जब आप कीमो लेते हो, ऑब्वियसली बाल वाल नहीं होते, तो मुझे उस टाइप के रोल्स मिले जहाँ पे लुकिंग फैबुलस वाज नॉट पार्ट ऑफ द डील. आई वाज प्लेइंग समबडी ओल्डर. इमरजेंसी फिल्म आई, उसमें भी लाइक आई गॉट अ मिनिस्टर्स रोल. सिग्नेचर में भी आई वाज प्लेइंग अ कैंसर पेशेंट. दे ट्वीक्ड द फिल्म स्क्रिप्ट, और उस टाइप के मदर रोल, उस टाइप का रोल मिला. सो आई वाज comfortable. So what special were you doing in terms of your day-to-day activities, your lifestyle, your diet, and your exercise during chemo, which can inspire so many others around the world? I'll say take it slow. आराम से सब कुछ हो जाएगा. मैं थोड़ी सी अग्रेसिव थी पहले कीमो के बाद भी. वॉक लेना शुरू किया, डाइट में ये वो, और पूरी चार्ट बनाई. बट मेरे डॉक्टर ने कहा डोंट वरी महिमा, जो बहुत गरीब होते हैं ना, जिनको डाइट के बारे में कुछ पता ही नहीं, दाल रोटी खाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं. सो डोंट वरी, जस्ट स्टे हैप्पी. मेंटल स्टेट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर डाइट राइट नाउ. एंड आई थिंक वो धीरे धीरे मैंने रिलैक्स किया. एक्सरसाइज भी मैंने कुछ ज़्यादा कर ली, जैसे अभी आपको बता रही थी. हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एक दिन ऑफ मुझे मिला, मैंने रूम में पूरे दिन योगा किया, पूरे दिन और इंस्टाग्राम पे देख देख के कि कैसे उल्टा लटकना है, कैसे ये करना है, कैसे वो करना है. मेरे को इतना बॉडी पेन हो गया 3-4 दिन के बाद, बिकॉज इट वॉज सो न्यू एंड आई वॉज सो वीक. आई गेस आई थॉट आई नीडेड टू गेट एन MRI ऑफ द होल बॉडी. सो टेक इट ईजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा. आई वुड से टेक इट ईजी ऑन योर डाइट, take it easy on the exercise. So is there a magical diet, and were you following one during?
I tried to have all that, वो जो barley water and all of that, but when you have chemo, it's difficult because there's so much of nausea. So थोड़ा सा भी टुकड़ा आपके मुंह में चला जाए बहुत है. So now, the journey post chemo, there are side effects which are in the short term and there are side effects in the longer term and ongoing side effects of hormonal therapies. Yes. What has been your mantra of coping up with the side effects? कुछ दिन तो बहुत जोश आता है. मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स है हार्मोनल थेरेपी के वो यही हैं कि बॉडी एक होता है और एक ब्रेन फॉग होता है, नींद नहीं आती और थोड़े मूडी हो जाते हो आप. कभी कभी आप बहुत सोशलाइज करते हो, कभी कभी आप किसी का जवाब भी नहीं देना चाहते, कभी कभी आपको लगता है हर चीज़ ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है, अच्छी है, कभी कभी आपको समझ में ही नहीं आता, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगता. So it's a lot and every day you have to focus. उसमें आपको meditation help करता है, where you become very conscious of the present and you try to stay in the present. So I've been doing that to stay away from so many things and I try and keep myself very busy ताकि मैं थक के रात को सो ही जाऊँ. So staying busy is important. Very important. Stay busy. To find out something to do. Yes. And not to laze around. Not to laze around. सच्ची और कुछ काम नहीं होता तो मैं अपने cupboards clean करने लगती हूँ, kitchen clean कर देती हूँ. You know, like I clean the drawers, I throw out things, I declutter. So does that mean that live life middle of the road, no extremes of anything, diet, exercise or anything? Sensible middle of the road living, is that the message you would like to? वही मैसेज है, लेकिन जब आप इस ट्रीटमेंट से जाओगे ना आप मिडिल ऑफ द रोड जा ही नहीं पाओगे. या तो आपकी गाड़ी इधर ऑफ रोड जाएगी या इधर ऑफ रोड जाएगी. सो वही है कि आपको बार बार अपना आपको वो बीच मिडिल रोड में लाना है. या तो किसी दिन आप सोचोगे क्या डाइट वाइट खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, कचौरी, और किसी दिन आपको लगता है नहीं बिल्कुल ककड़ी पे ही जिंदगी निकालनी है, you know, sprouts ही खाने. तो आपको वो middle road में रहने के लिए it's like learning to drive all over again. So that's a different challenge altogether. Very challenging. Right. I think as we are talking about the coping, the side effects and all that, now one very pertinent question is, apart from the treatment and its side effects, is the role of the society in general and the role of awareness. Our women are not aware. And that probably is the reason we are not picking up cases in the early stages. How many women go for an annual or a once in about 12 to 18 months mammography? That's a very small percentage. So about mammography, we hear a lot of things. Women come back and say it's X-ray based, it's detrimental, it's bad for you. So a very strong message from your side, you know, you did it, you picked it. बिल्कुल बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे आपको जहाँ पे वो बोलेंगे कि मेमोग्राम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसने ही मेरी ज़िंदगी बचाई. तो आई थिंक मैं एक बहुत गुड एग्जांपल हूँ जहाँ मैं सिर्फ एवरी 2 years मेमोग्राम करा रही थी आफ्टर 40 एंड उसमें ही पकड़ में आ गया, और इतना छोटा सा था और पकड़ के आ गया. तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है कि आप हर साल अपना चेकअप कराएं और अपनी सोनोग्राफी ज़रूर कराएं, और अगर 40 के ऊपर हैं तो मेमोग्राम आई थिंक मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है. And as we were discussing the other day, you made a mention that after your diagnosis, there was a rush of people around you Yes. who could be influenced. Yes. So one example, one good example could lead to a cascading effect. I think that's something we all humans also look forward to. You know. Yes, क्योंकि जब वो वीडियो निकला, सब मतलब मेरी लेबोरेटरी जहाँ मैं टेस्ट कराती हूँ, उन्होंने भी फ़ोन करके बोला कि महिमा तुम्हारी वजह से हम लोग कॉन्स्टेंटली बुक्ड हैं.
मतलब तुमने इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी ये बात बोल के कि सालाना चेकअप कराना कितना ज़रूरी है, और लोग सोचते हैं कि खाली ब्लड टेस्ट करा लिया तो टेस्ट हो गया। हम लोग इतनी सेल्फीज लेते हैं अपनी रोज़, सब लोग लेते होंगे, 10, 20, 100 तो लेते ही होंगे दिन में। एक अपनी बॉडी का सेल्फी लेना, अंदर से क्या हो रहा है वो लेना ज़रूरी है साल में एक बार। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। That's a catchy phrase that बॉडी के अंदर की सेल्फी लेना भी बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। और एडुकेटेड लोग इस बात को नहीं मानते। मेरे खुद फ्रेंड्स, मेरे डायग्नोसिस के बाद मैंने उनसे पूछा, जो मेरे बराबर ही एडुकेटेड हैं, कुछ तो डॉक्टर्स से मैरिड हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली दे टॉकिंग अबाउट दिस। मैंने उनसे पूछा कि तुमने टेस्ट कराया? नहीं, आई डोंट वांट टू डू, व्हाटएवर इट इज, इट्स ओके, ऐसे ही ऊपर चली जाऊंगी। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो लोगों के दिमाग में है कि उनको पता लगाना ही नहीं है क्या है। बट आई थिंक जिस दिन किसी ने आपको बोल दिया कि आपके 10 दिन रह गए या 20 दिन रह गए, उस टाइम पे आपको एहसास होगा कि काश मेरे पास कुछ वक्त और होता बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, लाइफ के साथ। दैट्स द टाइम यू विल अंडरस्टैंड। आई नो सबको डर लगता है कि कुछ निकल तो नहीं जाए, बट इट्स बेटर जल्दी पता चले, वो इम्पॉर्टेंट है। आज हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि अगर कुछ होना है तो जल्दी पता चल जाए आपको, तो आपका ट्रीटमेंट फटाफट हो जाएगा। और नहीं है तो नहीं है, टेस्ट कराने से थोड़ी आ जाएगा अगर नहीं है तो। सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड कि टेस्ट करवाने से बीमारी नहीं आएगी, नहीं आएगी, यदि होगी शरीर में तो पाई जाएगी बस। So you came out very strongly about your disease, about your treatment. A lot of people don't come forward. That is immensely appreciated because that has catalyzed many people to look after their health and their Yes. bodies. You know, Yes. what was the motivation? You know, what made you tell the public at large that well, this is a disease. And I can say that on your behalf that this is a disease detected early can be conquered. I think it was the people around me who helped me share this. मेरे co-stars और उन्होंने ही मतलब ये बहुत beautifully actually put forward किया. They helped me out. Excellent. I think that's amazing, you know. And the how much is the positivity angle, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि सकारात्मक रहिए किसी भी सिचुएशन में। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कैंसर से रिलेटेड इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, और मतलब देयर इज़ अ होल कम्युनिटी देयर टू सपोर्ट यू। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तब लॉकडाउन भी चल रहा था, कोविड बहुत ज़ोर से चल रहा था, तो एक अकेलापन भी था। अब जब दुनिया खुली है तो अब जब लोग मुझे इनवाइट करते हैं और हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग लेवल्स पे, डॉक्टर्स के लेवल पे, डॉक्टर साहब जैसे आप ये इवेंट्स कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैंसर रिलेटेड हैं। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट आउट देयर। तो कभी भी किसी को डिटेक्ट होता है, डोंट फील अलोन, यू आर नॉट अलोन। ये फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। So once the treatment happens, there is life after treatment, after disease. So what's your take on that? Now it's been a couple of years. Beyond that, so how do you motivate people? सर अलग अलग मूड, कभी कभी लगता है हाय यार मेरे को क्यों हो गया, इन लोगों को देखो, ये लोग रात रात भर सोते नहीं है, इतना गंदा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, इनको नहीं हुआ मुझे हो गया। और कभी कभी लगता है अब हो गया ना कैंसर, अब क्या हो जाएगा, अब विल फाइट व्हाटएवर इज कमिंग ऑल्सो। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट मूड यू आर इन। पर अब ज़िंदगी थोड़ी और प्रेशियस लगती है। अब लगता है कि बहुत लोग कैसे अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते।
अब ज़्यादा समझ में आता है कि देयर सो मच द बॉडी नीड्स. बॉडी को बहुत वक्त चाहिए हीलिंग के लिए, रिकूपरेट करने के लिए. हम लोग यंग होते हैं तो सोचते हैं कि नहीं करियर बना लें, बट डोंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ योर बॉडी. सोना, स्लीप, 8 hours ऑफ स्लीप, अच्छा खाना खाना, सोशलाइज करना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यू नो. Excellent. I think, थोड़ा हम लोगों को भी बात करने दो. sir, You seem smitten by her, so let us talk to her also. sir, करेंगे, सब करेंगे. No, you don't seem. So कभी आपको ये कभी एहसास हुआ या कभी ये फीलिंग आई, why me? आती है सर, अभी भी आती है, क्योंकि मेरी फैमिली को किसी को डिटेक्ट नहीं हुआ ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोई And भी कैंसर. Did you feel that there was something missing in the lifestyle or in the way you were living that could have been the trigger or could have been the cause for all this? I couldn't think of anything, but So just a sporadic, the I message think is, too much stress था 4-5 साल से. So I think sometimes लोग बोलते हैं ना, stress is the biggest killer. So stress manifests itself in different kinds of diseases. Some people may get high blood pressure, some people may get diabetes, किसी और को कोई और problem हो जाएगी. शायद stress was one of the reasons I got this. so I think we in this conversation we have a couple of comments, very quick comments or questions महिमा जी के लिए, but please बड़ा संक्षिप्त रखिएगा बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल. मैं इन्होंने तो मेरे एक सवाल का, मैं जर्नलिस्ट हूँ, सवाल सोच के आता हूँ, इन्होंने एक सवाल को किल कर दिया. मैं इनको कहना चाह रहा था, सवाल पूछना था कि खुले बालों में आप बड़ी सुंदर लग रही हैं, ये रियल है, लेकिन उसका तो आपने राज खोल दिया. तो मेरा इम्प्रेशन केवल सुन लीजिए ब्रीफली, एक लाइन में, कि अगर कैंसर उतना भी बुरा रोग नहीं है, क्योंकि आपको देख के आप इतनी सुंदर लग रही हैं, आप अपने प्राइम ऑफ लाइफ से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं. क्या बात है सर, थैंक यू, आपने यू मेड माय डे. thank you you. so Thank you so much. So any other please, any other question, comment? I think in the interest of time Yashika, please Hi Mahima ma'am, thank you so much for coming here. bring the mic closer. Yeah, so I'm also currently dealing with this disease, and I'm currently battling stage 4 TNBC, triple negative breast cancer. I think there's been a assumption in the society that, you know, if somebody is diagnosed with such a disease, the person can't continue living a normal life. In a lot of employments, we have seen this challenge that when we are trying to get a new job or when we disclose our disease, people just assume that the person won't be able to do justice to this job or the role. That's a And great question. Yashika, you brought a very pertinent issue to the fore. And I've been following the celebrities. Hina Khan is the latest example. She's been going to work, doing anything that a normal person would do. So what message would you like to give to the society who just assume that, okay, if somebody has a cancer, that person can't do anything? Thank you normal so that much. they do? There are so many cancer survivors. People don't survive a heart attack, but they survive cancer. And there's so much of treatment today that मैंने खुद देखा है. जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, बहुत लोग अपना कीमो लेते थे, खुद गाड़ी चला के वर्क पे जाते थे. मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई थिंक वो जो कंपनीज हैं जो अपने स्टाफ को, जो कोई भी डिजीज बैटल कर रहे हैं, उनसे कंटिन्यू रखते हैं या ऐसे लोगों को हायर करते हैं, दे आर गोइंग टू गेट समथिंग विच दे मे नॉट गेट फ्रॉम एनी अदर रेगुलर एम्प्लॉई, एंड दैट इज लॉयल्टी एंड अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स. ये आपको सिर्फ भगवान दे सकता है, besides somebody who's fighting a disease. So this is a message to all the companies. Thank you. जो कैंसर पेशेंट होता है वो काम पे जाता है, नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है,
लेकिन लोग क्यों नहीं उसको सोचते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ जिए? जनरली ये माना जाता है कि कैंसर पेशेंट है, वो जहाँ काम कर रहा है तो बहुत लोग ऐसा देखते हैं अरे ये मेहनत नहीं कर पाएगा या भाग दौड़ नहीं कर पाएगा। मैं इसको फील कर रहा हूँ इसलिए पूछा। आपसे चाहता हूँ आप अपील करिए। नहीं नहीं, मैं खुद बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपने ये सोचा हुआ है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट एक्चुअली खाली 4 दिन जब आपका कीमो होता है या रेडिएशन होता है, जो भी ट्रीटमेंट होता है, साइकिल्स होते हैं एवरी 21 डेज, उस टाइम पे 4-5 दिन आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। बाकी आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। आई थिंक मोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स टुडे और बेटर हो गए जब से मैंने लिया है, एंड उसमें आप रेगुलर लाइफ जी सकते हैं। But did you, in your own sphere, feel any change in the workplace attitudes or their perceptions? मेरे वर्क प्लेस में मुझे बहुत 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 वार्मथ मिली। जिन्होंने भी मेरी इंडस्ट्री में इसके बारे में सुना, सब ने जो उनकी मेरे लायक रोल हो सकता था, जो पहले शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा, बल्कि उस टाइम पे उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए। और अभी भी मेरी एक और फिल्म आ रही है, वो इट इज़ अबाउट सेकंड इनिंग्स, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। तो ये भी मेरी सेकंड इनिंग्स है, एंड वो फिल्म भी अबाउट सेकंड इनिंग्स है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो गए, मतलब इतना वायरल हो गया वो फिल्म का वीडियो, ज़्यादातर लोगों ने सोचा शायद सचमुच शादी हो गई। तो अब इससे लोग बहुत होपफुल भी हुए। बहुत लोगों ने सोचा हम भी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, हमारी भी ऐसी मतलब जिंदगी रंगीन हो जाएगी। तो एक बहुत खुशी का माहौल क्रिएट हो गया, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा, मेरा और संजय मिश्रा जी का। आप खुद सोच रहे थे कि मेरी शादी हो गई। So there is one Taking the comment. question forward, what sir has said, what was the society perspective with respect to the treatment when you were taking and now? What is the difference that you have feel? What is the Society perspective with respect to the time when you were being diagnosed to the present scenario where you are. Can you just share that perspective in a I briefly? think मैं ज़्यादा क्रेडिट नहीं लूँगी, बट थोड़ा सा क्रेडिट लूँगी कि मेरे स्टोरी शेयर करने के बाद आई थिंक एक एक्सेप्टेंस जो पहले थोड़ा कम था विथ कैंसर, एंड आई थिंक बहुत सारे हमारे फिल्म एक्टर्स जैसे सोनाली और संजय दत्त एंड हीना, हम जिस तरह से काम करे जा रहे हैं और लगे हुए हैं, और एक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग, सभी ऑडियंस को अंडरस्टैंडिंग आई है कि हाँ कैंसर हुआ था और अब ये वापस जॉब पे हैं और काम कर रहे हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ा है लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज़, ऑफ द आफ्टरमाथ, एंड हाउ वन कैन कंटिन्यू। आई थिंक बहुत अफेक्ट हुआ है। So that's a strong message that the disease or the treatment should not slow you or should not stop you, as Yashika very rightly said. Absolutely, Yashika. You Yashika, should continue. Thank you so much. And whoever you're working with, whoever gives you a job, I think is a great organization. I think one last Sir, comment or a question, and in the interest of time, we'll have to Hi ma'am, close. I'm also a survivor, okay, and I have 2 sons, one is 12 and one is 8. So they still don't know that what I have gone through. So you also have a daughter, so I just want one suggestion how you can tell your kids about this thing that. Have you finished your treatment? Yeah, everything is done. I think उनको थोड़ा बड़ा होने दो, अभी उनको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। Yeah, I know. That's हाँ, why तो जैसे ही वो बड़े होंगे, और आजकल के बच्चे तो बहुत जल्दी बड़े हो रहे They're हैं। very smart. I mean, Yeah. I hate Google because my son always Google it, and he was like, "Mama, I mean, why you shaved your hairs and all those stuff about the." I think you should wait. Yeah. कोई आपको एडवाइस जरूर करेगा कि आप फटाफट बता दो, Yeah. बट मैं कहूँगी आप you can wait. Thank you so much. thank you so much.
Ladies and gentlemen, let's give a standing ovation to Mahima Chaudhary ji for gracing the occasion, for talking to us about her life story, for inspiring all of us, and so many others who are on the social media platform. And before we close the session, I have the honor of inviting Professor Rakesh Kumar and Dr. Sabhyata to honor our guest. So honor our esteemed guest. So as I said, Professor Rakesh Kumar is the spirit behind all this. Thank you so much. I was just telling her that she was an inspiration to many of us earlier, but now she is inspiration to all of us, everyone in the world. Thank you, ma'am, for coming. Thank you so much. Thank you, T. Any last word you would? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आई होप बहुत सारे लोग जो अभी कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको हिम्मत देना चाहूँगी और यही बोलना चाहूँगी कि आप स्वस्थ हो जाएं और हिम्मत रखें और भरोसा रखें. जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी ठीक हो पाएंगे. और बाकी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप अपना सालाना चेकअप ज़रूर कराएं और घबराएं नहीं. चेकअप करा के आपको संतुष्टता होगी पूरे साल के लिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ. और टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गुड लक एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ.